कैसे लिखते हो? रुको रुको, मैं माउस नहीं हिला पाऊंगा। Good evening, students. So we'll start with a new chapter today. Simultaneous equations. Okay. Yes, Veer. So in simultaneous equation, there are three different methods with which we can solve the sums. So can anyone tell me in school which method have they taught you? Yes, Saksham. Just unmute yourself. Sir, in our school, we have been teached three methods: a method of elimination, method of substitution, and cross multiplication. All three were taught. Yeah. Okay, so did they tell anything which method will come in exam? Today only sir told that if a sum come, you have to keep in mind that you can do by any method, but just uh, means just solve the question by any method. Acha, by any method according to you. Okay. Yeah. Yes, Veer. Nothing, sir. I just told that I just wanted to tell that all the method we were taught. We were taught all the. Any method. Yes, Ali, you wanted to say something? All of you keep your videos on. Yes, Krishna. Yes, sir. In your school also, I think the same chapter is started. So here, which method was used by the sir? First, this one method of substitution, then method of elimination, then cross multiplication, and one more method was So used. did the sir tell you that you can use any of the one method? Nothing like that. So, okay. So the thing is, you can solve all the sums with using any method. Okay. You can solve the sums using any method. Okay. So I'll teach you all the three methods. And according to me, the second method, see, there are three methods in simultaneous linear equations. Okay. What are the three methods? First method is by substitution. Okay. Second method is elimination. And third method is
cross multiplication. Okay. Now substitution method is easy, but it is not suitable in all the sums. Okay. If there are simple equations, then you can use substitution method. Okay. But if there are the equations with big numbers, with large numbers, okay, this substitution method becomes a little complicated. So there you should use elimination method. Okay, this is the most effective method. Most effective, most important, you can say. Okay, elimination method, most important. So I will also do most of the sums using this method only. Okay, and then cross multiplication is a little complicated method. Okay, it is very rarely used. Okay, rarely used method. So I have explained you how to use the methods. I'll solve first a few sums from substitution method. To just explain you how to do it, and then most of the sums we'll do it from elimination method. Okay, don't worry, you will understand everything. Just pay attention carefully. For any doubts, raise your hands. Okay. So you can come to the exercise. I'll be starting with the first sum now. The first question is 3x plus y equals 2. See, in these type of sums, always you will have two equations. Okay, and you have to solve those two equations and find the value of x and y. Okay, x और y की value हमें find करनी होती है. x और y की value. So ये मेरा पहला equation है और दूसरा equation उसी के नीचे लिखा है. That is 2x plus 3y equals 20. This is my second equation. Okay. Now how to solve them? See, मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले substitution method. Okay, substitution method. As the name suggests, substitution में क्या करते हैं? पहले ही जो फर्स्ट इक्वेशन है, ओके, फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? जैसे समझो अभी यहाँ पे y है, ठीक है, ये y अकेला है, y, तो मैं क्या करूंगा, इस 3x को राइट हैंड साइड भेज दूंगा. सो आई विल गेट 2 minus 3x. करेक्ट. मैंने क्या किया, इस 3x को राइट हैंड साइड पे भेज दिया. ओके, सो आई गॉट 2 minus 3x. तो अब ये मेरे y की वैल्यू हो गई कि y equals 2 minus 3x. यस, बात समझ में आ रही है? y equals 2 minus 3x. ओके, अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन करूंगा. मतलब ये जो y की वैल्यू है 2 minus 3x, इस वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा. आई विल राइट हियर, पुट y equals 2 minus 3x in equation number 2. ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 2x plus 3y equals 20 है. ओके, सो यहाँ पे 2x plus 3, y के जगह पे what will I write? I will write 2 minus 3x equals 20. Are you getting what I am doing? मैंने पहले y की वैल्यू फाइंड की यहाँ पे x के टर्म्स में, करेक्ट, एंड देन आई सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 2. जहाँ पे इक्वेशन 2 में y था, वहां पे मैंने y की जगह पे लिख दिया 2 minus 3x. ओके, इज एवरीवन विथ मी?
Then I will further solve it. क्या आएगा मुझे? 2x plus open the brackets. So 3 into 2 will give me 6. 3 into 3x will give me 9x equals 20. Okay. So 2x ये plus 6 को right hand side भेज देते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा -6. So 2x minus 9x will give me minus 7x equals 14. So x is 14 upon -7. Okay, 7 ones are 7 twos are. So you will get x as -2. This is my answer for x. So now we have to put this x value into any of the equations to find y. Wait, just repeat. I cannot hear you. Sir, now we find the value of x. So we have to put x into one equation so that we get the answer of y. Yes. So now, once I get the value of x as -2, once I get x as -2, फिर मैं क्या करूंगा? कोई भी इक्वेशन में, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था. This was my first equation. Correct. This was my first equation and this was my second equation. Okay. किसी भी इक्वेशन में मैं x को, ये जो 2 है, इसको पुट कर सकता हूँ कोई भी इक्वेशन में. ठीक है, समझो मैंने फर्स्ट वाला लिया. फर्स्ट वाला इज 3x plus y equals 2. तो यहाँ पे आप लिखो पुट x equals -2 इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है, कहाँ पे x है? 3x है, तो 3 into -2 plus y equals 2. x की जगह पे -2 पुट किया. So what is 3 into -2? 3 into -2 is -6 plus y equals 2. So y equals, जब ये -6 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक है, this -6 will come here, so it will become +6. So you will get y as 8. तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला? जो मेरा x का वैल्यू होता है उसको मैं पहले लिखता हूँ एंड जो y का वैल्यू है उसे बाद में लिखता हूँ. सो दिस इज माय फाइनल आंसर, -2, 8. ओके. Sir, in school we are told that we have to write solution set bracket -2 -8. Yes. So you can replace this this word answer here with solution set. Solution set is -2, 8. Correct. Yes, Krishna. Is any doubt? Your hand is raised. Yes, Drishti, which step are you finding the difficult? Which So, dot? I didn't understand from where you put like y is equal to 2 minus 3 in equation 2. I didn't understand from there. Did you understand this? How did I got y is equals to -3x? Yes, sir, I got that. I got that. So this value of y, this is the value of y, 2 minus 3x. This is the second equation here. So in this second equation, there is y here. So in the place of y, you have to write 2 minus 3x. Okay, you have to write 2 minus 3x. So this 3 here will multiply with this bracket. So 3 2s are, you will get 6, and 3 3s are, you will get 9.
then you simplify this, you will get the value of x. Substitution, see मेथड का नाम ही है substitution. Substitution का मतलब ही क्या है, that एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे में पुट करना है, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. सी मितांश, फर्स्ट आई गॉट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, मुझे x मिला -2. फिर मैंने क्या बोला कि इस x की वैल्यू को -2 को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, फर्स्ट में या सेकंड में, वॉट एवर आई लाइक. ओके, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3x + y = 2, वहां पे मैंने x के जगह पे क्या पुट किया, -2. ठीक है, एंड देन आई सॉल्व्ड इट. 3 × -2 इज -6, एंड देन -6 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो वो बन गया +6, एंड देन 2 + 6 is 8. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है. It's called as substitution method. Copied? Everyone, can I erase this? Okay. Now, from the second sum onwards, we will do it by elimination method, because they have not specified which method to use. So I will explain you elimination method. Okay, we are doing elimination method now. Okay, so now see, you are doing this method for the first time. Okay, so but this is very, very important, because this same method you will use in 9th standard only. You will use it in many different chapters, the same method. Plus then you will use this in 10th standard also, in 11th standard also, in 12th standard. Whenever you will have equations to solve, you will have to use the elimination method. So ऐसा नहीं है कि you are studying elimination method only for this unit test or this term or this year. This is going to stay with you forever. How to solve by two equations by elimination method. Okay. So as the word says, elimination means यहाँ पे you have to cancel out one variable. What you have to do? You have to cancel out one variable. ठीक है, वेरिएबल समझते ना, वेरिएबल क्या होता है, x and y, ये होता है वेरिएबल. तो एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, तो कैसे करेंगे एक वेरिएबल को कैंसिल आउट, देखो ध्यान से. सो यू कैन चूज एनी वेरिएबल, इट्स योर चॉइस. ओके, इट्स योर चॉइस. यू कैन चूज x, यू कैन चूज y. ठीक है, जिसका भी नंबर्स इजी होता है, जिसके नंबर्स Sir, can I tell? यस. So by multiplying, if we want to eliminate y, so we will multiply the first equation by into 3 and the second equation by 5 to Yes, get I'm the coming there. same. Yes, you can try with that. So I was saying that it is your choice whether you have to choose the variable x or variable y. Okay. Now, how to eliminate? See, समझो, let's say I am choosing to eliminate x. ठीक है, तो x के numbers क्या है, 9 and 4. So you have to take the LCM of 9 and 4. You have to take the
LCM of 9 and 4. So 9 और 4 का LCM होता है 36. 9 4s are 36. ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट. 9 is 3 into 3 and 4 is 2 into 2. तो दोनों के नंबर्स अलग है. So you directly multiply them and you will get the LCM 36. ठीक है, अब LCM 36 है. So आपको क्या करना है, आपको इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा, और इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा. करेक्ट. ओके, सो ये जो 4 है ना, ये जो 4 यहाँ पे, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट दिस 4 हियर इनटू 4 एंड इनटू 9. मतलब इस x के LCM लेने के लिए आपने इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस 4 को 9 से. तो पूरा इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे नीचे पूरा इक्वेशन 9 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, जो भी नंबर आप चूज करते हो मल्टीप्लाई करने के लिए, द एंटायर इक्वेशन विल गेट मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर. ओके, सो क्या होगा, यहाँ पे आपने चूज किया है, यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई करोगे 9 से. ये जो 4 है यहाँ पे, ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा फिर ईच एंड एवरी टर्म. ठीक है, तो 4 into 9 is 36. करेक्ट. 9 4 are 36. फिर ये -5, ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 से. सो 5 4s are 20. ओके, इक्वल्स 52 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा. पूरा इक्वेशन, तीनों टर्म्स 4 से मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, तो 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 208. ओके, 52 into 4 is 208. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कि मैंने क्या किया है? मैंने पहले एक वेरिएबल चूज किया कि यस मैं x को कैंसिल आउट करूंगा. ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट समझते हो, मतलब x के साथ क्या नंबर है 9 एंड x के साथ यहाँ पे क्या नंबर है 4. तो मैंने 9 और 4 का LCM लिया, मुझे मिला 36. तो मैं यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और ये पूरे इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, सो मुझे, हाँ, अभी नीचे वाले इक्वेशन को 9 से करते हैं. तो 9 4 वापस 36 आएगा x. देन 9 -3 से मल्टीप्लाई होगा. 9 into -3 is -27y equals 27 into 9. 27 भी 9 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, 9 7 63, 9 2 18, 24. So you will get 243. समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, all of you. I'll allow you to unmute yourself. Okay. मैंने फंक्शन चेंज किया है. You are allowed to unmute yourself. Just without any doubt, don't keep yourself unmute. So it will create disturbance. So whenever you have doubt, you can immediately unmute yourself and ask. ठीक है. तो I hope all of you have understood. अभी तक मैंने क्या किया. ठीक है, तो मैंने जब ये LCM लिया 9 और 4 का, ठीक है, मुझे 36 मिला एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 9 से. तो अब देखो, अब ये दोनों सेम हो गए. 36 36 36x 36x. यही मुझे करना था. ठीक है, दिस वाज माय एम, टू मेक वन वेरिएबल सेम. ठीक है, एक वेरिएबल सेम बनाना. तो मैंने ये बना दिया, एक वेरिएबल सेम. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है इस वेरिएबल को एलिमिनेट. आई हैव टू एलिमिनेट दिस वेरिएबल. कैसे एलिमिनेट करते वेरिएबल को? अब ये 36 है और ये 36 है. ठीक है, सो 36x के बीच में कौन सी साइन आएगी जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा आंसर? माइनस साइन आएगी. करेक्ट, आपको पता है 36 और 36 के बीच में माइनस साइन आनी चाहिए, तब जाके 36 - 36 विल गिव मी 0. ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करूंगा एक दूसरे से. क्या करूंगा? सबट्रैक्ट करूंगा.
while copying the equation आप यहाँ पे माइनस साइन डालना और एक लाइन लीव करना है यहाँ पे, लीव वन लाइन हियर, ठीक है, एंड देन ड्रॉ अ बिग लाइन लाइक दिस, ठीक है। ये लाइन क्यों लीव करना मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, जब आप यहाँ पे माइनस, जब इक्वेशन को आप माइनस करते हो, when you subtract the equation, there is one step you have to do. That step is change the signs. Okay, what step you have to do? जब भी आप दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन, इसकी सारी साइंस चेंज हो जाती है। जैसे आपको याद है, समझो अगर ऐसे होता है तो आप क्या करते हो, लेट्स से इफ इट इज लाइक दिस, तो व्हाट यू डू, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स, ये हो जाता है -36x माइनस 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 क्या बन जाता है, +27y बन जाता है। तो माइनस साइन के वजह से इन दोनों की साइन चेंज हो जाती है। इन द सेम वे whenever you are subtracting two equations, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड वाला इक्वेशन जो आपने नीचे लिखा है यहाँ पे, इसकी सारी साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखो ये 36 है तो ये बन जाएगा -36, ये -27 है तो ये बन जाएगा +27, ठीक है। आप चाहिए तो ये जो +27 है ये आप इसी के ऊपर बना सकते हो या नीचे एक्स्ट्रा बना सकते हो यहाँ पे +27, ठीक है, दैट्स अप टू यू। आप चाहिए तो उसके ऊपर ही स्क्रिबल कर सकते हो, उसके ऊपर ही आप चेंज कर दो कि ये हो गया +27, ठीक है। अब ये 243 के साथ कौन सी साइन है, 243 के साथ साइन कौन सी है, प्लस है, कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, तो उसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस, समझ रहे हो। तो जब आपने माइनस किया तो आपने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन के साइंस को चेंज कर दिया, ओके, सेकेंड इक्वेशन के साइंस को चेंज कर दिया, ओके। एनी डाउट टिल हियर, okay, so I hope everyone has understood till here, ठीक है, yes, okay, so अब मैं करूंगा एडिशन और सबट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 36x माइनस 36x क्या होता है, 36x माइनस 36x 0 हो जाता है, तो ये हो गया 36x माइनस 36x क्या होगा, कैंसिल, ओके। देन क्या बचा, -20y प्लस 27y, -20y प्लस 27y, टेल मी व्हाट विल हैपन टू दिस, इसका क्या होगा, So 47. No, so 7y.7y. -20 प्लस 27 मतलब ये हो गया 27 माइनस 20, ओके। तो क्या बचेगा, 7, मतलब ये हो जाएगा 7y, क्या मिला, 7y, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे है 208 और यहाँ पे 165. -35. 208 35. minus 243, 208 Minus minus 243, that is -35. Sir, y is equal to -1. Okay, wait, -35, so यहाँ मिल गया मुझे -35, तो अब क्या होगा, 7y equals -35, तो y equals -35 upon 7, so y equals -5, ओके। स्टेप बाय स्टेप एकदम धीरे धीरे समझाए हमने कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं स्टेप लिस्ट डाउन करता हूँ यहाँ पे एक आउटलाइन की तरह, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ओके। आप चाहिए तो कॉपी कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है कि चूज अ वेरिएबल टू एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट, एक वेरिएबल चूज करना है, फिर उसका एलसीएम लेना है, ठीक है, एंड देन आपको या तो माइनस करना है या तो प्लस करना है,
ठीक है, वो आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे देख के कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 36x था और नीचे भी 36x था, तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने माइनस चूज किया था। ओके, नाउ वंस यू हैव y, अब y मिलने के बाद जो पिछले सम में किया था वही, y के वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इन एनी इक्वेशन। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन ही रखते हैं हमेशा स्टैंडर्ड। सो पुट y इक्वल्स -5 इन इक्वेशन 1। क्या है आपका इक्वेशन 1? क्वेश्चन से ही देख लो, 9x - 5y इक्वल्स 52। और यहाँ पे जहाँ पे y है, y के जगह पे यू विल पुट -5 इक्वल्स 52। आपने ये फर्स्ट इक्वेशन कॉपी किया और इसमें y के जगह पे यू पुट -5, then 9x - 5 will become +25 equals 52. So 9x is 52 minus 25. So 9x equals 27. So x equals 3. Sir, what was the second point? This point. Yes. हाँ, मतलब एलसीएम लेना आपने। अगर आपने वेरिएबल चूज कर लिया, समझो कि x है, ठीक है, तो x के साथ 9 है और 4 है, तो इन 9 और 4 का आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ नंबर्स। Yes. Yes, Kali. You are asking that can you do it by y also? Yes, you can do it by y also. मैंने क्या कहा है, चूज अ वेरिएबल, मतलब आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हो। ठीक है, yes, everyone has copied the sum. Any doubts here? अभी हम सारे सम यही मेथड से करेंगे, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ये मेथड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सर फिर Sir, in सब्स्टिट्यूशन same मेथड time, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या नहीं sir, है? in सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर एलिमिनेशन मेथड से। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या है पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, बड़े बड़े नंबर्स में बहुत इनइफेक्टिव हो जाता है। इनइफेक्टिव इन द सेंस, देखो जैसे कभी मैं यही क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, समझो आप यही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन था 9x - 5y इक्वल्स 52, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते, तो क्या होता, समझो आपने इस 5y को इधर भेज दिया, तो आपको मिलता है 9x इज 52 + 5y। फिर आप इस 9 को डिनोमिनेटर में लेके आते, तो आपको मिलता है x इज 52 + 5y अपॉन 9। ये आपको x की वैल्यू मिलती इतनी बड़ी, और इस इतने बड़े वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना होता है x की जगह पे दूसरे इक्वेशन में। तो थोड़ा क्या होता है, कैलकुलेशन वगैरह बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है इसके अंदर, वो तो प्रॉब्लम सर होती फिर हम लोग को ज्यादा करके एलिमिनेशन ही यूज करना है ना। है। यस यस, एलिमिनेशन सबसे बेस्ट मेथड है। इनफैक्ट आपके स्कूल में भी, आपके टीचर्स भी, सबको पता होता है ये बात कि एलिमिनेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, तो वो आपको वो खुद भी आपको ज्यादा करके समझ इसी मेथड से सिखाएंगे। सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहा कि सॉल्व द सम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ, देन फिर उसी रिस्पेक्टिव से फॉलो करना पड़ेगा अगर लॉन्ग हाँ नंबर यस आया यस, तो। अगर अगर उन्होंने बोला है ना आपको ऐसे कि इसी मेथड से यूज करो, तो आपको करना पड़ेगा। यस, बट जनरली वो लोग है ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इन दोनों मेथड के लिए कभी स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है, जो थर्ड मेथड है आपका Sir, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आंसर सेम आएगा ना? यस यस, आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई भी मेथड यूज करो। But you और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना, वो ऐसा एक रेयर मेथड है, ठीक है, तो इसके लिए वो लोग आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ, क्रॉस मेथड से ही यूज करो, से ही सॉल्व करो सम को। ओके, लेकिन बाकी मेथड के लिए वो लोग स्पेसिफाई नहीं करते, आज तक तो कभी नहीं किया है उन्होंने। ओके, सो आई होप ये कॉपी हो चुका है।
सो आई विल जस्ट इरेज दिस, रिमूव दिस, तो हम नेक्स्ट सम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे सम्स है. Sorry, we are doing sub question 2, main question 2. Sub question 1, क्या इक्वेशन है 3x minus 2y equals 9 and x upon 3 minus y upon 3 equals 5 upon 6. तो अब यहाँ पे क्या है, इफ यू कैन सी, ये फर्स्ट इक्वेशन तो नॉर्मल है, नॉर्मल इक्वेशन दिख रहा है, x है, y है, 9 है, बट यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन दिख रहे हैं, x upon 3, 5 y upon 6, 5 upon 6. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो. ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 6. तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 18. 6. 3 और 6 का एलसीएम 18 आएगा ही नहीं ना. देखो ना 6. यहाँ पे, इस 3 को ही 2 से मल्टीप्लाई 6. करो तो 6 ही एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, जब दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तभी आप उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम 2x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 6 इक्वल्स 5 अपॉन 6. तो अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये ऐसा आ जाएगा. ठीक है, अब ये दोनों साइड में डिनोमिनेटर में 6 है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो. तो क्या मिला, 2x माइनस वाई इक्वल्स 5. तो ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन जो एकदम नॉर्मल था, ये वाला, और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा. तो क्या है इक्वेशंस, 3x माइनस 2y इक्वल्स 9 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स 5. अब हमारा स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप कि एक वेरिएबल जिसको आपको चूज करना है, जिसको आपको एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो मैं किसको एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आपको उसके नंबर को सेम बनाना है. जो भी आप वेरिएबल चूज करो, अगर आपने x चूज किया या आपने y चूज किया. ठीक है, Sir, तो we should choose y. चलो इस क्वेश्चन में हम y चूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे y के साथ क्या नंबर है, 2 है, और यहाँ पे y के साथ क्या नंबर है, नंबर ही नहीं है. नंबर ही नहीं है मतलब क्या है, 1 है. ठीक है, नंबर का नहीं होना इसका मतलब होता है 1. तो मुझे इन दोनों नंबर को सेम बनाना है. ठीक है, इन दोनों नंबर्स को, यहाँ पे ऊपर वाले y के कोएफिशिएंट को और नीचे वाले को सेम बनाना है. तो मैं क्या करूंगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2. 2 ही होगा. करेक्ट, तो मैं ये ऊपर वाले नंबर को, ये इसको और इसको सेम बनाने के लिए मैं नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. ऊपर वाले को तो किससे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई विद एनी नंबर. तो आप क्या करते हैं, जब कोई भी नंबर से जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई के, तो यू मल्टीप्लाइड बाय 1. 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी चेंज नहीं होता, तो यू जस्ट राइट इट लाइक दिस इनटू 1. समझ रहा है, so this is 3x minus 2y equals 9. Just a second. एंड नीचे वाले इक्वेशन में ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा. मैंने बताया पूरा इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है. तो दिस 2 विल मल्टीप्लाई विथ 2x, तो ये बन जाएगा 4x. दिस 2 विल मल्टीप्लाई विथ 1,
तो ये बन जाएगा -2y. ये 2 will multiply with 5, so this will become 10. Yes, others, have you understood this? मैंने कैसे सेम बनाया इस वेरिएबल को? Yes, sir. Yes, I want a positive answer from all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, very good. Yes, sir. So अभी आपको ये समझ गया, ठीक है. अब मुझे देखना है, मेरा फर्स्ट काम हो गया, मैंने वेरिएबल को सेम बना दिया, ठीक है. अब सेकंड काम है, एलसीएम भी ले लिया मैंने. अब मुझे साइन कौन सी यूज करनी है? तो यहाँ पे मेरे पास -2y है और यहाँ पे भी -2y है, ये दोनों -2y है. तो सी Addition. -2y, बीच में एक साइन आएगी और वापस -2y, इक्वल टू आना चाहिए 0. इन दोनों को कैंसिल करना है, ठीक है, कैंसिल करना है. ये -2y है, ये -2y है. तो क्या साइन रखूं मैं यहाँ पे? कृष्णा इज सेइंग आई शुड पुट प्लस साइन हियर. तो अगर मैंने प्लस किया तो क्या होगा? -2 प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस. Minus. तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा. -2y -2y. तो ये तो -4y बन जाएगा. Minus sign. तो प्लस minus sign will come. प्लस साइन गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है. तो अभी आपको हर बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा. मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा प्लस लेना है या माइनस लेना है. आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये दोनों जो टर्म्स है ना, अगर इनकी साइन सेम है, अगर इनकी साइन सेम है तो आप सीधा इधर माइनस पुट कर दो. जब भी दोनों टर्म्स की साइन सेम होती है तो आपको उनको सबट्रैक्ट करना है. जब दोनों टर्म की साइंस डिफरेंट होगी, अभी ऐसा कोई सम आया नहीं है, जब आएगा तब बताऊंगा, डिफरेंट होगी तो आपको उनको ऐड करना होता है. ओके, तो यहाँ पे साइन सेम थी तो आपको माइनस करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सबट्रैक्ट हियर. ठीक है. अब मैंने रूल बताया था कि जब सबट्रैक्ट होगा तो सेकेंड इक्वेशन में सबकी साइन चेंज होगी. सेकेंड इक्वेशन में ओके, सबकी साइन चेंज होगी. सो someone will tell me here, yes Drishti. Yes, sir. Tell me how will the signs change for this equation? So I don't know. Think you will get the answer right. मैं माइनस कर रहा हूँ. So I said that ये जो second equation है, the second all the signs in the second equation will change. Yeah. So Minus. here what sign will come? Is this 4 positive or Minus. so minus will come because this is already Yeah. positive. What about Yeah. this -2? I'll get +2. It will become plus, correct. What about this 10? -10. -10. सबकी साइन चेंज हो गई. नाउ लेट्स ऐड और सबट्रैक्ट. ठीक है. तो ये 3x - 4y क्या होता है? 3x - 4y -x हो जाएगा. 3 - 4 -1 होता है. ओके. -2y + 2y ये तो गया हमारा, कट हो गया, एलिमिनेट हो गया. देन 9 - 10, 9 - -1 minus cancel, x equals 1. मिल गया आंसर. एक वेरिएबल रेडी. Sir, now we have to put it in a first अब ये x equals 1 को आप कोई भी इक्वेशन में पुट करो. सबसे अच्छा होता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करो x equals 1 को. Sir, till now we had not find y. What? Yes, you have to find y. So sir, it is better to put in y na in the second equation. You can put it in any equation. Sir, can I see the y? Yes. Y is equal to 3. Okay, I'll put the value of y here. See, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ. So y
So y is equal और to इस minus इक्वेशन में मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y इक्वल्स 9। तो 3 को वहां भेजते हैं, 9 y माइनस is equal 6 to -3. अपॉन -2 दैट इज -3। इसके बाद मैंने Sir, स्टेप यहाँ पे किया है। I got only 3 minus y equal to 3. So is it right or wrong? हाँ इट इज राइट ना, -5 इक्वल्स 3, तो ये माइनस साइन को इधर भेजो ना, तो y विल बी -3। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब दोनों की साइन सेम होती है ना, तो आप यहाँ पे माइनस साइन डालते हो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, and I am telling you this is the most important method. It will be useful in many other sums. In fact, when we will do the chapter number, I guess, factorization, there also it will be useful. In other chapters also it will be useful. Yes, copy this everyone. Sir, solution set. हाँ yes, solution set लिखना बाकी है ना, यहाँ पे लिख देते। Solution set पहले आएगी x की वैल्यू दैट इज 1, और फिर आएगी y की वैल्यू दैट इज -3। So is it compulsory to write the value of Yes. x first? yes 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 because Why solution so? set का मतलब होता है x, y। तो हमेशा पहले x आता है फिर y। Compulsory, we have to put curly brackets. यस, सॉल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होता है। Sir, but in our school it is taught that curly brackets, normal brackets, then -1 comma -3, bracket closed, all the bracket closed. आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली, यू सेड क्या, दो टाइप के ब्रैकेट्स? Yes, sir. Curly and normal. Yes, curly and normal brackets. दोनों डालने बोला है सर ने। Yes. First curly bracket, then normal bracket, then -1 comma -3, then normal bracket close, then curly bracket close. ठीक है वैसा कर लो, बट इतना जरूरत नहीं होता, एक ब्रैकेट काफी है। ठीक है अभी बोला है स्कूल में, तो आप वो कर लो, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही होना चाहिए हमारा। So yes, Sir, do marks get cut if we do not write solution set? yes, the teacher may cut your marks. That depends on the teacher, because अगर lenient teacher है तो उनको x और y की वैल्यू मिल गई है तो they will be satisfied, but sometime, but because it is a rule that you have to write the solution set, so marks they can cut. Okay, so I'll erase this. Yes, sir. ये फर्स्ट इक्वेशन है, and second equation is 5x equals 3y plus 18. अब पहले इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। आई विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एलसीएम लूंगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12. सिंपल है, 3 4 12, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 8x प्लस 3 3 9, 9y अपॉन 12 इक्वल्स टू 7। अब कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। 7 and 12 will be multiplied. 12 will go here and get multiplied. So what is 12 sevens are? 84. 84. This will be my first equation.
Sir, we can simplify it more, na? You can simplify. We can simplify this more How? by putting 8 as denominator of 84. No, you cannot transfer this 8 here, क्योंकि ये 8 सिर्फ x के साथ है. Okay. ये अगर ऐसा होता ना 8 और ब्रैकेट होता यहाँ पे तो ये 8 नीचे आ सकता था, बट ऐसे नहीं है. Sir, Yes. sir, we cannot divide 8x upon 10. x बाहर लगा के. यहाँ पे ये हाँ. नहीं, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है. प्लस साइन होती है तो ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते. Okay. So can't we take common in the 8x plus 9y upon 12? क्या Can't we take कॉमन आ any सकता number? है? 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता. 8 2 into 2 into 2 होता है और 9 3 into 3 होता है. अगर होता तो कर सकते, कुछ कॉमन आता तो लेना चाहिए था. Okay, sir. Thank you, sir. So then also common comes 9 into 8 and 8 into 9. Both values are 70. अगर ऐसा होता तो What I told, 8 into 9 and 9 into 8. LCM ऐसा नहीं होता. LCM तो डिनोमिनेटर्स का होता है, न्यूमरेटर को आप कैसे LCM कर सकते हैं? No, sir, I was telling if these both number in denominator. नहीं, वैसा नहीं हो सकता. Sir, hello. Yes. Sir, the second equation 5x is equal to 3y plus 18. Can अब we ये take the 5x equals 3y plus 18 है. ठीक है, सबसे पहली बात तो कि ये 3y जो है ना राइट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए. राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ नंबर होता है हमेशा. तो ये Yes, 3y so को we इधर लाओ. have to take 5x minus 3y. इज इक्वल्स टू 18. ये है आपका सेकंड इक्वेशन. Sir. ठीक है, अब आपके दो इक्वेशंस रेडी हो गए. नाउ राइट देम वन बिलो द अदर. ये आपके दोनों इक्वेशंस है. नाउ यू विल चूज अ वेरिएबल जिससे आप दोनों को सेम बनाओगे. ठीक है, आप x को भी कर सकते हो और y को भी कर सकते हो, लेकिन इजी किसका होगा, किसका मैं इजीली कर सकता हूँ? सो 8 और 5 को अगर मैं चूज करूंगा तो मुझे 8 और 5 का एलसीएम मिलेगा 40. 40. ठीक है, लेकिन अगर मैं y को चूज करूंगा तो y में क्या है, 9 है और 3 है. तो 9 और 3 का ज्यादा इजी है क्योंकि इस 3 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों सेम हो जाएंगे. मतलब एलसीएम 9 ही होता है इसका, 9 और 3 का. सी दिस वन 9 एंड 3. तो इस नीचे वाले इक्वेशन के 3 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों सेम हो जाएंगे सीधा. ज्यादा आसान है ये करना. इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको करना पड़ेगा 3 से. ओके, अगर आप x को चूज करोगे. सर यस, 18 की साइन चेंज नहीं होगी. इसकी साइन 18. कहाँ पे है? 18 को आपने शिफ्ट ही नहीं किया है, हमने 3y को शिफ्ट किया है यहाँ पे. पर वो पहले इक्वल के बाद था, अभी इक्वल के पहले है ना. नहीं, इक्वल के बाद ही तो है 18. ठीक है, इक्वल टू इधर ही तो है. तो साइन चेंज नहीं होगी. नहीं, सी बिकॉज 18 तो यहीं पे है, आपने 3y को इधर से इधर लाया. 18 इज स्टिल ऑन द राइट हैंड साइड. एटीन इज स्टिल ऑन द राइट हैंड साइड. 18 का कुछ भी चेंज नहीं किया हमने. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, 8 और 5 से 40 लाने से ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो 40 लाने के लिए आपको इसको 5 से करना पड़ता, इसको 8 से करना पड़ता, तब जाके 40 मिलता. दो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता. तो इट इज बेटर टू मेक y इक्वल. ठीक है, y को इक्वल करना ज्यादा इजी है. तो इस 3 को, ये जो 3 है इसको आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से, तो ज्यादा इजीली सेम हो जाएगा. तो अब ये क्या होगा, इसको 1 से करेंगे तो ये तो इक्वेशन सेम ही रहेगा, और नीचे वाला इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 5 3 जा
So we 15. can also eliminate x, no? You can eliminate x if you want, but it will become lengthy. 3 into minus 3 will give you minus 9y. 18 3 54. is a 54. Now, what signs I have? I have plus 9y and I have minus 9y. एक प्लस है एक माइनस है 9y. साइंस डिफरेंट है. मैंने बताया था कि अगर मुझे 0 चाहिए यहाँ पे, साइंस अगर डिफरेंट होती है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. प्लस 9y माइनस 9y, सीधा कट. और ऐड करने में आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता. ऐड करने में आपको कोई भी साइन चेंज नहीं करनी, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सीधा एडिशन शुरू कर देना है. जैसे माइनस में कैसे सेकंड इक्वेशन के साइन को चेंज करना पड़ता है, ऐड में नहीं करना होता. ठीक है, यू हैव टू डू इट डायरेक्टली. तो 8x plus 15x will give you 23x. Plus 9y minus 9y cancel. 84 plus 54 128. 128. 138. 138. 38. ठीक है, so x is 138 upon 23. ओके, तो ये 6 होता है आई थिंक. Yes. So you will get the value of x as 6. अब जो सबसे सिंपल इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर दो. तो ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है ना, ये ज्यादा इजी है. तो x को इसमें पुट कर दो. पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 2. तो ये था आपका इक्वेशन 2, दिस वन. सो x की जगह पे पुट 6. ओके, now I will give you one sum. Sir, y equal to 4. Yes, y equal to 4. Now I will give you one sum. You have to solve it, send me the answer, and that will be it for today. ना हो जाएगा थोड़ी देर में. I will give you one sum. Yes, mute yourself. Solve this sum. You have to choose which variable you will make same. Okay, and you will find the answer.
Yes, I don't want you to say the answer aloud. You can only message me the answer because others are also solving. So if you want to answer, you will message me. I don't want you to reveal the answer. That's why. Yes, few students have tried to give me the answer. Some got the answer correct. Some have made silly mistake. Yes, Kali, now your answer is correct. Veer, your answer is correct. Harsh, the question is absolutely correct. Your method is wrong. Krishna, your second value is incorrect. Sadali, wrong. No. No, Naitik. Akshal, wrong. I will make the y equation same.